تو فلم شروع ہوتی ہے فلوریڈا شہر سے، جہاں ہم ایک چھوٹا سا کیفے دیکھتے ہیں۔ یہاں لیزا نام کی لڑکی کام کرتی ہے۔ وہ سبھی کسٹمرز کو بہت اچھی طرح ڈیل کرتی ہے اور ان سب چیزوں کی وجہ سے اس کا باس لیزا سے کافی خوش تھا اور وہ اپنا کام ختم کر کے روز کی طرح اپنے گھر جا رہی ہوتی ہے۔ تب ہم اس کے چہرے پر اداسی اور ڈر دیکھتے ہیں۔ حالانکہ لوگ کام ختم کرنے کے بعد جب گھر لوٹتے ہیں تو ان کے چہرے پر ایک خوشی ہوتی ہے، لیکن لیزا تو بہت اداس لگ رہی ہے، جس سے ہم سمجھ پاتے ہیں کہ اس کے لیے گھر کا مطلب کچھ اور ہی تھا، کیونکہ اس کا گھر لیزا کے لیے کسی ہیل جہنم سے کم نہیں تھا۔ وہ جب راستے میں تھی تو اپنے ساتھ ہونے والی غلط چیزوں کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے، جس میں وہ ایک آدمی کو دیکھتی جو لیزا کے روم میں آتا ہے۔ اب یہ آدمی کون تھا یہ ہمیں جلدی پتا چلے گا۔ تبھی اچانک اس سنسان روڈ پر لیزا کی نظر ایک بلیک کار پر پڑی، جسے دیکھ کر وہ کافی گھبرا جاتی ہے اور سائیکل کی سپیڈ تیز کر کے اس سے دور بھاگتی ہے اور سیدھا اپنے گھر چلی گئی، جہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ لیزا کا گھر نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی نانی اور ان کے دوست کے ساتھ رہتی ہے۔ اب اس کی نانی کا دوست وہی آدمی ہے جس کے بارے میں لیزا ابھی کچھ دیر پہلے سوچ رہی۔ وہ اس کی نانی کی مالی طور پر مدد کرتا ہے اور بدلے میں ہر رات لیزا کے کمرے میں جانے کی اجازت اسے مل جاتی ہے، اور وہ اس بیچاری کے ساتھ بہت غلط کرتا ہے۔ ایک دن لیزا ان سب چیزوں سے تنگ آ کر سوسائڈ نوٹ لکھتی ہے، لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی جان لے۔ دوسرے دن لیزا اپنی بہن سے بات کرتی ہے جو ان کی موم کے ساتھ رہتی ہے۔ لیزا اپنی بہن سے کہتی ہے کہ وہ یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ جب وہ اپنی ماں کو یہ ساری چیزیں بتاتی ہے جو اس کے ساتھ ہو رہی ہیں تو یہ سن کر بھی اس کی ماں یہی کہتی ہے کہ چاہے جو بھی ہو جائے تمہیں وہیں رہنا ہوگا اپنی نانی کا خیال رکھنے کے لیے۔ اتنا بول کر وہ فون کاٹ دیتی ہے، جس سے ہم اندازہ لگا لیتے ہیں کہ لیزا کی موم کو یہ سب پہلے سے ہی پتا تھا۔ اسے لیزا کی کوئی فکر نہیں تھی، نہ ہی اس کی حالت کا اندازہ تھا۔ اس بیچارے کی زندگی عذاب بن چکی ہے جس سے وہ چاہ کر بھی باہر نہیں نکل پا رہی ہو، پر اسے کیا پتا تھا کہ اس سے بھی زیادہ طوفان اس کی زندگی میں دستک دے چکا ہے جو اسے اندر سے جھنجھوڑ کے رکھ دے گا۔ جب وہ ایک رات کیفے سے گھر جا رہی تھی تو اسے راستے میں وہی بلیک کار نظر آتی ہے جسے اس نے پچھلی رات بھی دیکھا تھا، لیکن اس بار وہ کار اس کا پیچھا کرنے لگی۔ لیزا اس کار کو دیکھتے ہوئے سائیکل چلا رہی تھی کہ ایک آدمی اسے پیچھے سے پکڑ لیتا ہے اور اسے کڈنیپ اغوا کر لیتا ہے، جس کے بعد وہ اسے اپنی کار میں لے جا کر بیچارے کے ساتھ بہت غلط کرتا ہے۔ یہ کرنے کے بعد اس نے لیزا کی آنکھوں پر پٹی باندھی تھی تاکہ وہ اس کا چہرہ نہ دیکھ سکے۔ لیزا یہاں پر بہت زیادہ ڈر چکی تھی کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اسے اب کہاں لے جا رہا ہے اور اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ وہ اسے اپنے ساتھ شہر سے دور ایک سنسان فلیٹ پر لے کر جاتا ہے جہاں وہ اس کے ساتھ ایک بار پھر سے غلط کرتا ہے۔ اب یہاں پر لیزا اتنا تو سمجھ چکی تھی کہ یہ آدمی ایک سائیکو ہے، پاگل انسان۔ وہ سوچنے لگتی ہے کہ یہ سب تو اس کے ساتھ پہلے بھی ہو چکا ہے اس کی نانی کے گھر پر، مگر اس ٹائم سب سے ضروری تھا اس کا زندہ رہنا۔ وہ کیسے بھی یہاں سے نکلنا چاہتی ہے۔ دوسری طرف لیزا کے گھر نہ آنے پر اس کی نانی اس کی مسنگ رپورٹ لکھوانے کے لیے جاتی ہے، جہاں پولیس اپنی انویسٹیگیشن شروع کر دیتی ہے۔ پولیس سب سے پہلے لیزا کی موم کے گھر گئی تو اس کی موم کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ اپنے میل فرینڈ کے ساتھ بھاگ گئی ہو۔ یہ سب سن کر پولیس آفیسرز وہاں سے جانے لگتے ہیں، لیکن لیزا کی بہن انہیں روک کر کہتی ہے کہ وہ کبھی بھی بھاگ نہیں سکتی، وہ ضرور کسی بڑی مصیبت میں پھنس چکی ہے۔ دوسری طرف کچھ آفیسرز لیزا کے کیفے جاتے ہیں جہاں وہ کام کرتی ہے، تو وہاں سے پتا چلتا ہے کہ وہ ایک بہت ذمہ دار اور محنتی لڑکی ہے، وہ ایسا کام کبھی بھی نہیں کر سکتی۔ اب سین اسی فلیٹ پر شفٹ ہوتا ہے جہاں لیزا کی آنکھوں پر پٹی بندی ہونے کے باوجود بھی وہ وہاں کی ساری چیزوں کو نوٹس کر رہی ہوتی ہے اور اپنے مائنڈ میں سیٹ کر رہی ہے۔ پھر جب وہ آدمی دوبارہ اس کے قریب آیا تو وہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ لیزا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ تو دماغی طور پر ایک نمبر کا پاگل انسان ہے، مگر ایک پوائنٹ پر آ کر وہ اس کے ہاتھوں کو کھول دیتا ہے۔ پر لیزا کو یہ بات اچھی طرح پتا کہ ایک بھی غلط قدم اٹھانے پر وہ آدمی مجھے شوٹ کر سکتا ہے، میری جان لے سکتا ہے، کیونکہ وہ اس کے ساتھ 24 گھنٹے رہتا ہے۔ اب لیزا دھیرے دھیرے اپنی موجودگی کا ثبوت اس گھر میں ایک ایک کر کے چھوڑنا شروع کرتی ہے۔ وہ اپنے ہیئر پن نکال کر بیڈ کے نیچے پھینک دیتی ہے، جس کے بعد وہ باتھ روم جانے کا بہانہ کرتی ہے اور وہاں کے شیشے پر اپنی انگلیوں کے نشان لگا دی۔ تبھی اسی باتھ روم میں شوز دکھتے ہیں جن کا کلر اور لوگو وہ یاد کر لی۔ ابھی وہ یہ سب کر ہی رہی تھی کہ تبھی اس کڈنیپر کو پتہ چل جاتا ہے کہ لیزا نے خود کو باتھ روم میں لاک کر لیا، اسی لیے وہ زبردستی دروازے کو کھول کر
अंदर घुस आता है। पर यहाँ लीजा बिल्कुल नॉर्मल बर्ताव करती है। वो ऐसे करके दिखाती है जैसे उसे उसकी बहुत फिक्र है। फिर एक रात जब वो इंसान सो रहा था तो लीजा चुपके से उठकर कॉल लगाने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे पहले दिन ही ये अंदाजा लग गया था कि इस घर में एक टेलीफोन है। पर इससे पहले कि वो कॉल लगाए आदमी जाग जाता है और लीजा को पकड़ लेता है। फिर उसने कहा, तुम बहुत चालाकी दिखा रही हो। यहाँ पर वो आदमी बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था और अब वो लीजा को जान से मारने की कोशिश करता है। पर वो कहती है कि मैं बस अपने बीमार बाप की तबीयत के बारे में पता करना चाह रही, साथ ही उन्हें बताना चाहती थी कि मैं यहाँ खुश हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। ये बोलकर वो इमोशनल होने का नाटक करती है और जोर जोर से रोने लगती है। उसे देखकर वो आदमी हमदर्दी देकर चुप करवाता है और खुद भी शांत हो जाता है। ऐसी सूरत हाल में लीजा को सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन की कही हुई बात याद आती है कि चाहे जैसी भी सूरत हाल हो, कभी भी हार मत मानना। और फिर एक दिन जब वो आदमी उसके करीब आया तो लीजा उसे कहती है, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे ना तो मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, मैं अपनी मर्जी से तुम्हारी दोस्त बन जाऊंगी, कभी भी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी, तुम्हारा ख्याल रखूंगी, हमेशा तुम्हारे साथ में रहूंगी। ये सब सुनकर वो पागल आदमी लीजा से बहुत ज्यादा मुतासिर और खुश हो जाता है और उसे छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। वहीं दूसरी तरफ फ्लोरिडा पुलिस डिपार्टमेंट को एक सीरियल किलर के बारे में पता चलता है जिसने पिछले 6 महीने में कई लड़कियों को जान से मारा था। वो आदमी भी ये न्यूज देख रहा था तो उसे लगा कि यही सही टाइम है लीजा को छोड़ने का, क्योंकि पुलिस तो इतने बड़े केस को सॉल्व करने में मसरूफ है, तो पुलिस इस छोटे मोटे केस पर ध्यान नहीं दे। और वैसे भी लीजा ने तो उसे देखा भी नहीं है जिससे कि वो उसे पहचान सके। यही सारी चीजें सोचकर वो लीजा को अपनी कार से एक सुनसान जगह पर लेकर जाता है, मगर यहाँ पर फिर से उसका इरादा बदल गया और लीजा को शूट करने का सोचता है। मगर लीजा उसे कहने लगती है कि मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ, मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहती हूँ, प्लीज मुझे मत मारो। जहाँ वो साइको आदमी उसकी बात पर पिघल गया और वो लीजा से कहने लगता है कि अगर पुलिस तुमसे पूछताछ करे तो तुम उन्हें कहना कि मैं काला, मोटा और कद से छोटा दिखने वाला इंसान हूँ। इतना बोलकर वो लीजा को वहीं छोड़कर वहाँ से फरार हो जाता है। वो भी वहाँ से भागती हुई अपने घर आती है, जहाँ वो अपनी नानी को बताती है कि उसे एक आदमी ने किडनैप कर लिया था, लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि उसकी नानी उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर। अब जैसा कि उसकी नानी पुलिस में रिपोर्ट कर चुकी थी तो वो पुलिस को कॉल करके उन्हें लीजा के वापस आने की खबर देती। उन्हें भी ऐसा लगता है कि पुलिस भी लीजा की बातों पर यकीन नहीं करेगी, पर इंस्पेक्टर उसे एक बार बात करना चाहते थे। वो ये जानना चाहते थे कि आखिर उसके साथ हुआ क्या, जहाँ लीजा उन्हें सब कुछ बताती है जो भी उसके साथ हुआ था। लेकिन यहाँ पर भी उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं कर रहा था। उन सब का यही कहना था कि अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो उसके जिस्म पर कोई निशान क्यों नहीं है, और अगर उसके हाथ पर खुले थे तो उसने वहाँ से भागने की कोशिश क्यों नहीं की या फिर चीखी चिल्लाई क्यों नहीं। जिस पर लीजा कहती है कि वो आदमी पूरा का पूरा साइको और मेंटल था, उसके पास एक गन भी थी जिससे वो बार बार मुझे मारने की धमकी दे रहा था और इसीलिए उसने कोई भी रिएक्ट नहीं किया ताकि वो अपनी जान बचा। मगर ये सब सुनने के बाद भी उन ऑफिसर्स को लग रहा था कि लीजा ये सब लोगों का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए कह रही है। वहाँ 2 लेडी पुलिस ऑफिसर्स को तो ये तक लगने लगता है कि जरूर लीजा टीवी शोज बहुत देखती है, इसीलिए तो वो इतनी परफेक्ट मन घड़त कहानी बना रही। अब लीजा पूरी तरह से चुप हो गई और टूट जाती है कि उसकी बात पर कोई यकीन नहीं कर रहा। पर लीजा की किस्मत बहुत अच्छी थी क्योंकि उस टाइम वहाँ पर एक डिटेक्टिव टीम मौजूद थी जो उसे सीरियल किलर वाले केस को सॉल्व करने में लगी हुई, जिसने पिछले 6 महीने में कई लड़कियों को जान से मारा था। और उसके खिलाफ अभी तक पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला था और ना ही कोई सुराग था जिसके मुताबिक वो इस केस को सॉल्व करके उसे पकड़ सके, जिसकी वजह से पुलिस के लिए केस सॉल्व कर पाना एक चैलेंज बन चुका था। उधर लीजा को इस तरह चुप देखकर लेडी ऑफिसर डिटेक्टिव की मदद मांगती। इस डिटेक्टिव का नाम लैरी था और तब लैरी लीजा के पास गया, लेकिन वो बिल्कुल खामोश थी और अब किसी से बात करना नहीं चाहती। लैरी ने अपनी जेब से अपनी बेटे की तस्वीर निकाल कर उसके सामने रख दी ताकि लीजा को अपनापन महसूस हो और वो खुलकर बात कर सके। उन्होंने लीजा से कहा कि जो भी तुम्हारे साथ हुआ है मुझे एक एक करके सब बताओ। तब लीजा ने उन्हें सारी बातें बताना शुरू कर, जैसे कि उस आदमी के पास एक ब्लैक कार है जिसमें रेड कारपेट लगी हुई है, उसके घर में 22 सीढ़ियां हैं, उसकी कार के अंदर मैग्नम लव्स लिखा हुआ है
उसके घर में एक बेड है और वो आदमी वाइट है रंग से और उल्टे हाथ से सब काम करता है, साथ ही उसके पास गन भी है। इतना कुछ सुनकर लैरी कंफर्म हो जाता है कि लीजा झूठ नहीं बोल रही है। वो फौरन उसके केस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के लिए कहती है, मगर इसकी इजाजत लेने के लिए उसके घर पर कॉल की जाती, जहां उसकी नानी का दोस्त लीजा का बाप बनकर बात करता है और वो इस चीज के लिए साफ साफ इनकार कर देता है, जिस पर लैरी सोचने लगते हैं कि एक ऐसा बाप है जिसे अपनी बेटी की फिक्र नहीं है। वो लीजा से उसके बारे में पूछते हैं कि आखिर वो ऐसा क्यों है, जहाँ थक हार कर लीजा नानी की दोस्त की सच्चाई भी लैरी को बता दी। तो वो फौरन उसकी नानी के घर जाती है और उसके दोस्त को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब यहाँ पर लीजा के केस को पूरी टीम बहुत सीरियसली इन्वेस्टिगेट कर रही। लीजा की बताई गई सारी डिटेल्स लैरी के दिमाग पे घूम रही थी। वो सिर्फ एक ही बात सोच रहा था कि कहीं किडनैपर वही सीरियल किलर तो नहीं, क्योंकि सारे पॉइंट्स मैच कर रही थी। इसीलिए वो कंफर्म करने के लिए लीजा के कपड़ों को लैब में टेस्ट करने के लिए भेजते हैं और जब रिपोर्ट आती है तो वो कंफर्म हो जाते हैं कि ये किडनैपर वही किलर है, क्योंकि लीजा के कपड़ों से भी वही लाल धागा मिलता है जैसा बाकी विक्टिम्स इन्हें शिकार हुई लड़कियों के कपड़ों से मिला था। अब लैरी पूरी तरह से श्योर हो गई थी कि ये वही आदमी है जिसे वो इतने टाइम से ढूंढ रहे हैं। अब लैरी लीजा को उस जगह पर लेकर जाता है जहां वो किडनैपर उसे छोड़कर गया था, जिसके बाद लीजा लैरी की कार में बैठ जाती है और अपनी आंखें बंद करके वही सब सोचने लगती है जो कुछ उसने झेला होता है। पुलिस ने गैस स्टेशन की कैमरास को चेक किया जहाँ उनके हाथ एक बहुत बड़ा सबूत लगता। लीजा ने जैसे स्केच उस आदमी की बनवाई थी, बिल्कुल वही आदमी कैमरा की फुटेज में दिख जाता। इस आदमी के पोस्टर्स बनवाए जाते हैं और जगह जगह लगा दिए जाते हैं। पुलिस उसकी तलाश भी जारी कर देती है और कुछ वक्त बाद एक पुलिस ऑफिसर को वो आदमी दिख भी जाता है। वो उसके पास जाते हैं और कहते हैं, सर हमारे पास एक चोरी की रिपोर्ट आई है और हमें आपकी कार की फोटो लेनी पड़ेगी। वो कार के बहाने उस आदमी की फोटो खींच लेते हैं और उसे जाने देते हैं। लीजा को फोटो दिखाने के बाद वो आदमी को पहचान जाती है और कंफर्म कर देती है कि यही वो किडनैपर। इसके फौरन बाद पुलिस उस आदमी के घर पहुंच जाती है और वहाँ उन्हें 22 सीढ़ियाँ मिलती हैं। घर के अंदर जाने पर उन्हें लीजा की हेयर पिन्स और उंगलियों के निशान भी मिल गए थे जो लीजा ने जानबूझकर छोड़ दिए थे। इतने सारे सबूत मिलने के बाद पुलिस उसे पागलों की तरह ढूंढना शुरू कर देती है, जो आखिरकार उन्हें मिल भी गया, जो आराम से सरेआम घूम रहा था। तभी कई सारे पुलिस ऑफिसर्स उस पर गन पॉइंट कर देते हैं चारों तरफ से और आखिर इतने बड़े मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया जाता है सिर्फ लीजा की वजह से। ये सब होने के बाद लैरी लीजा को ये खबर देते हैं और उसकी बहादुरी पर लीजा के लिए सब क्लैपिंग करते हैं और उसे सैल्यूट किया जाता है। लीजा ने अपने साथ साथ उन लड़कियों को भी इंसाफ दिलाया था जो बेकसूर थी और किलर के हाथों बेमौत मारी गई। साथ ही किलर को पकड़वा कर आगे होने वाले जुर्मों को भी रोक दिया था। लीजा अब अपनी नानी के घर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वो एक जहन्नुम था, इसलिए लैरी उसके अंकल और आंटी को कांटेक्ट करके वहाँ बुलाते। लीजा के साथ इतना कुछ हो गया था, वो इस हालत में थी, तो आंटी सभी चीजों के लिए लीजा से माफी मांगती हैं। वो ये भी कहती हैं कि उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो अब लैरी से भी कहने लगी कि लीजा अब हमारी जिम्मेदारी है और हम इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। अब लैरी ने लीजा की इतनी मदद की थी, इसलिए वो उसका शुक्रिया अदा करती है और उसे अलविदा कहकर जाने लगती है। तो यहाँ लैरी काफी इमोशनल हो गया था। कुछ टाइम के बाद लीजा अपनी मॉम को एक खत लिखती है जिसमें उसने लिखा, मॉम आप हमेशा से कहती थी ना कि मैं एक अच्छी जिंदगी नहीं जी सकती क्योंकि मैं इस लायक नहीं, मगर आप गलत और आप बहुत बुरी माँ। इतना कहकर वो उसे हमेशा के लिए गुड बाय लिखती है। तब उसकी माँ को एहसास होता है कि मैंने लीजा के साथ हमेशा गलत। अब लीजा के पास एक फैमिली थी जिस फैमिली के प्यार के लिए वो हमेशा तरसा करती थी, वो सब आज उसके पास है। उसे अच्छी लाइफ मिल गई। अब उस किलर को भी मौत की सजा सुना दी गई थी। कुछ साल के बाद हम लीजा को देखते हैं जो अब एक पुलिस ऑफिसर बन गई है, क्योंकि वो बहुत बहादुर लड़की थी और आखिर तक उसने हार नहीं मानी। वो लड़ी क्योंकि वो खुद इतनी बड़ी मुश्किल से गुजरी थी, तो बाकियों की मदद करने के लिए वो पुलिस ऑफिसर बन गई थी। हमेशा लोगों की मदद के लिए वो तैयार है। और इसी के साथ ही इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।